Good morning, students. I am your English teacher Shabana, and today's topic is chapter number 5. It's raining in Agumbe. Yes, students, Agumbe is a place that is in South India. It is the wettest place in South India, in Karnataka. So, students, we will learn about this place that is wettest place in South India. Okay, and in this chapter we'll read a conversation between two children about Agumbe, that is the wettest place in South India. Okay, and students, now we will read the chapter 5. Open your book, everyone, and open the page number 56, chapter number 5. It's raining in Agumbe. So let's start. Agumbe is a small village in Karnataka. Agumbe is a small village in Karnataka. It is in the hills of Western Ghats and often called Cherrapunji of South India. So students, we are talking about a place Agumbe, that is the wettest place of South India. Agumbe is a small village in Karnataka. Karnataka में एक छोटा सा village है Agumbe, and it is in the hills of Western Ghats and often called Cherrapunji of South India. ये वेस्टर्न घाट के हिल्स में है और ये इसको साउथ इंडिया में चेरापूंजी भी कहा जाता है. दिस प्लेस इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटी, थिक फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड रेयर प्लांट्स. ये प्लेस अपनी ब्यूटी के लिए, अपनी सुंदरता के लिए, अपनी थिक फॉरेस्ट, घने जंगलों और एनिमल्स और रेयर प्लांट्स के लिए जाना जाता है. रेयर जो बहुत मुश्किल से चीज़ें दिखती हैं, that is the rare things. Okay, Agumbe Rainforest Research Station is ARRS. Agumbe Rainforest Research Station is a field-based conservation and research organization. The place attracts many tourists as well as scientists and researchers. ये place अपनी तरफ बहुत सारे scientists, tourists and researchers को attract करता है. So students, now we are going to read this chapter. Okay, the conversation between the two students. Here is a boy, Madhav. He said, "Hi Geeta, wait for me. Stop walking so fast." Hello Geeta, मेरा वेट करो प्लीज़, बहुत जल्दी जल्दी मत चलो. Geeta said, Geeta is a girl here, and she said, "Hurry up Madhav, I want to reach school as fast as possible." मैं जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी स्कूल पहुंचना चाहती हूँ. जल्दी करो माधव, hurry up, जल्दी करो. Then Madhav said, "Why? It's quite early. We have a lot of time to reach school. Let's enjoy the cool and cloudy weather." क्यों? हम तो वैसे ही बहुत जल्दी हैं. We have a lots of time. हमारे पास स्कूल पहुंचने के लिए बहुत टाइम है. चलो इस ठंडी और क्लाउडी वेदर को एंजॉय करते हैं. Then Geeta said, "Look at those dark clouds. देखो उन गहरे रंग के क्लाउड्स को, काले बादलों को. I hope it does not rain. मुझे आशा है कि रेन ना हो, बारिश ना हो. Then Madhav said, "Of course it will rain. We live in Agumbe." ज़रूर ही बारिश होगी, because we live in Agumbe. Then Geeta said, "I have forgotten to bring my umbrella. I don't want to get wet." मैं अपना अम्ब्रेला लाना भूल गई हूँ. I don't want to get wet. मैं गीली नहीं होना चाहती. Then Madhav said, "How can you forget to bring an umbrella in Agumbe? Agumbe में तुम अम्ब्रेला लाना कैसे भूल सकती हो? It's the wettest place in South India. On top of that, it's the monsoon season." Madhav said, "It is the wettest place in South India. ये साउथ इंडिया का सबसे गीला प्लेस है, मीन सबसे ज़्यादा रेन यहाँ पर होती है. On top of that, it's the monsoon season. और ये तो मॉनसून का सीज़न है.
So students, Agumbe is a wettest place in India. That's why Madhav said, how can you forget to bring an umbrella in Agumbe? It is the wettest place in South India. On top of that, it's the monsoon season. Now, we will read the next page. Geeta said, oh, don't lecture me. मुझे lecture मत दो. My cousins have come for a visit. मेरे cousins यहाँ पर visit के लिए आएंगे. I got so busy telling them to remember to carry their umbrellas that I forget my own. मैं उनको सब कुछ बताने में अपना अम्ब्रेला लेना भूल गई. Then Madhav said, don't worry, I have got mine. We will share if it rain. चिंता मत करो, मेरे पास मेरा अम्ब्रेला है. I will share. मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लूँगा. If it rains, अगर बारिश होती है. Geeta said, well, thank you for the offer, but your small umbrella won't be able to save my shoes from getting wet. Then Geeta said, अच्छा, तुम्हारे ऑफ़र के लिए थैंक यू फॉर द ऑफ़र, बट योर स्मॉल अम्ब्रेला, तुम्हारा छोटा सा अम्ब्रेला वॉन्ट बी एबल. वॉन्ट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट. ओके, वॉन्ट बी एबल टू सेव माई शूज़ फ्रॉम गेटिंग वेट. बट तुम्हारा छोटा सा अम्ब्रेला मेरे शूज़ को गीला होने से नहीं रोक सकता. बिल्कुल भी एबल नहीं है कि मेरे शूज़ गीले ना हो. देन माधव सैड, यू आर राइट. तुम बिल्कुल सही हो. अम्ब्रेला डज नॉट प्रोटेक्ट आवर शूज़. अम्ब्रेला हमारे शूज़ को प्रोटेक्ट नहीं करता. वी विल ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल ऑफ द पुडल्स ऑन द रोड. देन गीता सैड, व्हाट अबाउट आवर बैग्स. हमारे बैग्स का क्या? आवर अम्ब्रेला इज़ टू स्मॉल टू कवर अस एज वेल एज आवर बैग्स. तुम्हारा अम्ब्रेला बहुत छोटा है हमारे बैग्स को कवर करने के लिए. आई डोंट वॉन्ट माई बुक्स एंड नोटबुक्स टू गेट वेट. मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी नोटबुक्स एंड बुक्स गीली हों. देन माधव सैड, स्टॉप कंप्लेनिंग सो मच. बहुत ज़्यादा कंप्लेन करना बंद करो. टेल मी अबाउट योर कज़िन्स इंस्टेड. उसकी जगह पे मुझे अपने कज़िन्स के बारे में बताओ. कज़िन्स, चिल्ड्रन ऑफ योर अंकल एंड आंट, है ना. वेयर हैव दे कम फ्रॉम. वो कहाँ से आए हैं. गीता सैड, माई कज़िन्स हैव कम फ्रॉम बेंगलोर. कला एंड बेला वॉन्टेड टू सी अ रेन फॉरेस्ट. मेरे कज़िन बेंगलोर से आए हैं. कला एंड बेला वॉन्टेड टू सी अ रेन फॉरेस्ट. कला और बेला रेन फॉरेस्ट देखना चाहते हैं. येस्टरडे दे वॉक टू अगुम्बे रेन फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन. कल वो अगुम्बे रेन फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन गए थे. दे कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ लीचीज़ दैट क्लाइम्ड ऑन देयर बॉडीज़. वो बिल्कुल भी अपने आप को नहीं रोक पाए कि लीचीज़ उनकी बॉडी पर जो लीचीज़ चढ़ गए थे उनके बारे में बात करने पे. लीचीज़, यस स्टूडेंट्स, लीच इज़ एन इंसेक्ट that live in the wettest places. So there are many leeches. They climbed on their bodies. So they were talking about them. So after that Madhav said, did not you warn them about the leeches. क्या तुमने उन्हें लीचीज़ के बारे में वार्न नहीं किया था. गीता said, of course. I told them to wear close fitted clothes and knee length socks and shoes. मैंने उन्हें बताया था कि क्लोज फिटेड क्लोथ्स पहनना, क्लोज फिटेड अच्छे से फिट जो क्लोथ्स होते हैं वो क्लोथ्स पहनना, और नी लेंथ सॉक्स पहनना जो घुटने तक, नी मीन घुटना, नी लेंथ सॉक्स जो होते हैं उनको पहनना और शूज़ को पहनना. द लीचीज स्टिल गॉट देम. देन लीचीज स्टिल गॉट देम. सो गीता warned them about leeches, but they didn't listen about the leeches. Now we will open page number 58 of this chapter. Now Madhav said, did they like ARRS? क्या उन्हें ARRS पसंद आया? What did they see?
उन्होंने क्या देखा? गीता said, they enjoyed the trek. उन्होंने ट्रैक enjoy किया. I had told them that Agumbe is also known as Cobra Capital. मैंने उन्हें बताया कि अगुम्बा को कोबरा कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है. बट दे आर डिफ़िकल्ट टू फाइंड इन द मानसून. लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मानसून में उन्हें ढूंढना. यस स्टूडेंट्स, कोबरा कैपिटल के नाम से भी अगुम्बे जाना जाता है. वाई? बिकॉज देयर आर सो मैनी कोबरा स्नेक्स. सो दे वर सुपर एक्साइटेड टू स्पॉट 2 कोबराज. इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, सुपर एक्साइटेड थे कि 2 कोबराज को देखने के लिए. माई आंट सेड द फॉरेस्ट वॉज सो ग्रीन एंड सूदिंग. मेरी आंट ने, मेरी चाची ने, मेरी आंट ने कहा कि फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन एंड सूदिंग है. शी लव्स प्लांट्स. उन्हें प्लांट्स बहुत पसंद आते हैं. देन माधव सेड, योर आंट मस्ट हैव बीन वेरी हैप्पी टू सी सो मैनी मेडिसिनल प्लांट. योर आंट मस्ट हैव बीन वेरी हैप्पी. आपकी जो आंटी हैं वो मेडिसिनल प्लांट्स, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स देखकर बहुत खुश होंगी. गीता सेड, ओ यस शी वॉज ऑल्सो थ्रिल टू सी मॉस एंड फर्न्स. मॉस एंड फर्न्स को देखकर वो बहुत थ्रिल हो जाएंगी, बहुत खुश हो जाएंगी. मॉस एंड फर्न्स, यस दे आर द टाइप, दीज आर द टाइप्स ऑफ सम प्लांट्स, मॉस एंड फर्न्स. ओके. Madhav said she liked moss. Moss is so irritating. It grows like weed everywhere. उनको मॉस पसंद है. मॉस तो बड़े इरिटेटिंग होते हैं. वो वीड की तरह चारों तरफ वीड की तरह ग्रो होते रहते हैं. गीता said, she says that the moss and ferns on the roof make the houses look very attractive. वो कहती हैं कि मॉस और फर्न्स रूफ़ के ऊपर, छत के ऊपर हाउसेस की बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं. शी इज़ प्लानिंग टू कलेक्ट फर्न्स एंड हर्बल प्लांट्स टू टेक बैक टू बेंगलोर. वो प्लानिंग कर रही हैं कि वो फर्न्स और कुछ हर्बल प्लांट्स जो हैं वो कलेक्ट करके बेंगलोर लेके जाएंगी. माधव सेड, एंड व्हाट डज योर अंकल से अबाउट आवर विलेज. और तुम्हारे अंकल और आपके अंकल हमारे विलेज के बारे में क्या कहते हैं? Geeta said, he finds it very peaceful and beautiful. He finds it very beautiful and peaceful. कि ये जगह बहुत ज़्यादा पीसफुल और ब्यूटीफुल है, सुंदर है. पीसफुल जहाँ पर शांति होती है. ओके, पीसफुल एंड ब्यूटीफुल. वी ऑल वेंट टू द सनसेट पॉइंट इन द इवनिंग. हम सब सनसेट, शाम के समय सनसेट पॉइंट पर भी गए. They wanted to see the sun setting in the Arabian Sea. वो सब देखना चाहते थे कि वो सब अरेबियन सी में सनसेट होता हुआ देखना चाहते थे. बट वी कुड नॉट सी इट. लेकिन वो नहीं देख पाए. बिकॉज इट वॉज सो क्लाउडी. क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाउडी था. पूरा वेदर जो था वो बहुत क्लाउडी था. बहुत सारे क्लाउड्स. देयर वर सो मैनी क्लाउड्स इन द स्काई. दैट्स वाई दे कुड नॉट सी द सन सेटिंग. Uncle kept on clicking pictures of the cloudy and foggy scenes. So, uncle ने foggy scenes, और foggy means जहाँ पे बहुत सारा fog होता है, foggy scenes and cloudy weather के बहुत सारे pictures click किए. So students, we will read the remaining chapter next day. So this chapter, It's Raining in Agumbe, is all about a place that is the wettest place in South India. So students, read these 3 pages of this chapter and we will read remaining chapter next day. Okay students, bye bye, take care yourself.